Hello, students. I welcome you all to the Vajiram and Ravi's Toppers podcast. Today, we have with us a very special guest, Harshvardhan Patil. Harshvardhan had secured rank 349 in UPSC CSC examination 2025. Harshvardhan, first of all, big congratulations and welcome to the podcast. Thank you, sir. Thank you very much. And my first question to you would be, how has the life changed after the examination? Sir, basically, first of all, I am feeling very much happy. Apart from me, my family is very happy about my results. Okay. So after that happiness, I am feeling little bit of relaxed in this stage. So that's mixed feeling for me. Okay. And I think this was your second interview and third attempt. Yes, sir. And in all the attempts, you have qualified the prelims examination. Yes, sir. And prelims examination is approaching, as we know, hardly 1.5 months is there. So my next question would be about prelims examination. How did you prepare for prelims examination? And what would be your advice to the students who are appearing for the upcoming prelims examination? Because as far as I understand, you have scored more than 100 in each attempt in prelims exam. Yes, sir. It was my third attempt. In 2023, I gave my first attempt. That time, I scored around 102 marks. Okay. In next attempt in 2024, I scored 107 marks. Okay. And in this time, I scored 114 marks. Okay. So the official cutoff is there or not yet? Yes, cutoff is out, but the official mark sheet I was asking. yes, mark sheets are out. So I scored relatively fair in prelims in all my 3 attempts. Yes. So I think for prelims, the revision and the solving of the PYQs as well as the mock test is very much important. Yes. That's what I did actually. Okay. I used to revise a lot, means at least 3-4 times each subject I used to revise for each prelims. Okay. And after that, I used to solve at least 20 or 20 plus full-length tests, mock tests for prelims. Okay. So उसका काफी ज्यादा रोल रहा कि मार्क्स मेरा काफी अच्छा स्टेबल रहा, रिलेटिवली कट ऑफ से ज्यादा ऊपर रहा, कि मुझे पता था कि क्या पूछते हैं, क्या आता है. सो इसके रिगार्डिंग मैं वही वापस से बताना चाहूंगा कि जो रिवीजन है अपना, उस पर ज्यादा ध्यान दो. स्पेशली आई एम व्हाट आई डिड कि स्टैटिक में मिनिमाइज मिस्टेक होना चाहिए, मतलब मिस्टेक जितना कम हो सके उतना होना चाहिए. मेरा ऐसा रहता था कि जो अपना स्टैटिक सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसमें लाइक देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. Okay, that is तो your approach. अगर हम लोग पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, तो स्टैटिक पे भी काफी सारे सवाल रहते हैं. हम लोग उस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते. अगर हम लोग स्टैटिक पे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके मिस्टेक मिनिमाइजेशन करेंगे तो वो बेस स्कोर आ ही जाता है. हाँ, because almost 150 मार्क्स तो स्टैटिक से आता ही है. तो वो बेस अच्छा करेंगे और ऊपर का थोड़ा गेस वर्क या एलिमिनेशन टेक्निक से इम्प्रूव टॉप अप करेंगे उस पे ऊपर, तो अच्छा स्कोर बन जाता है. तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्टैटिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए रिवीजन और सॉल्विंग के थ्रू, और उसमें मिस्टेक कम करना चाहिए. उसमें मिस्टेक कम करनी चाहिए, बिकॉज आपका जो स्कोर है वो स्टेबल ही नहीं, वो ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स इट हैज इम्प्रूव्ड. You started from 102 and you reached up to 114. Yes, sir. And you talked about solving mock test. Yes, sir. And many students, many aspirants, this is a very common doubt कि सर एनालाइज कैसे करें इनको, how to analyze the mock test. We are doing the mock test, but how to improve on the basis of those mock tests. What is your strategy? सर पहले तो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, उसके बाद इमीडिएटली मैं चेक करता था कि स्कोर कितना आ रहा है, और उसके बाद मैं सॉल्यूशन गो थ्रू करता था. पूरा सॉल्यूशन मैं पढ़ता था अच्छे से. उसमें से हमको काफी नई चीजें पता चलती है सर, कि हमने वो नहीं पढ़ी है आज तक. वो एज कंटेंट में वैल्यू एडिशन होता है. हमको वो ओके ठीक है, ये पता नहीं था मुझे, ये अब पता चल गया, इसका कुछ तो यूज होगा बाद में. तो ऐसे मैं करता था कि एज अ मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन है वो भी मेरा एक सोर्स रहता था स्टडी का. तो उसमें से मैंने स्टडी किया, एनालाइज किया, और मैं हमेशा देखता था कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ पे हुए, लेवल क्या थी पेपर की, ये अपने को जज होता है बेसिकली कि क्या लेवल है पेपर की. अगर इजी पेपर में मेरे ज्यादा मिस्टेक हो रहे तो कुछ तो गड़बड़ है. हाँ, तो
वापस रिवाइज करो। Okay. मिस्टेक किस में है, कौन से सब्जेक्ट में है, वो एनालाइज करता था कि हर बार किस में ज्यादा कम नंबर्स आ रहे हैं, उसमें ज्यादा रिवाइज करना है, वो ज्यादा एक बार देखना है कि अरे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो खुद को ही पता चलता है सर कि व्हाट्स हैपनिंग। Okay. So and I think especially what is important for prelims is the having that mindset Okay. for prelims. Okay. Sometimes what happens, sir, we solve the mock paper or in actual exam, we face a difficult question, very difficult question. So at that moment हमको ऐसे लगता है कि we did something wrong. मेरा प्रिपरेशन ही नहीं है, वो पूरा मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि अरे ये भी नहीं आया मुझे, वो भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह मतलब जब होगा तो सिर्फ एक ही ध्यान देना है। मैं ऐसे करता था कि देखो हमने एक साल इतना पढ़ा है, पूरा सब रिसोर्सेस यूज किए, पूरा पढ़ा है, मुझे नहीं आता, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी को भी नहीं आएगा। तो इसका, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे थोड़ी एब्सोल्यूट स्कोर करना है। पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। एग्जैक्टली। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तुम मुझे नहीं आ रहा है, मैंने काफी अच्छा स्टडी किया है, मुझे भी नहीं आ रहा है, तो हाई लाइकली चांसेस है कि ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है। नहीं तो ऐसे सवाल पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है कि अरे मुझे नहीं आया ये, तो मूव ऑन होना है, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करना है। अगर ये माइंडसेट रहेगा तो पूरा 100 सवाल तक आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप आगे के जो सवाल है इजी, वो भी अच्छे तरह से टैकल कर पाओगे। और वो मैंने बोला वो स्टैटिक, वो बेस स्कोर आ जाएगा, उसके ऊपर अगर आप करंट अफेयर्स से टॉप अप कर दोगे स्कोर अच्छे से, तो आपका प्रीलिम निकल जाएगा सर। Okay, okay, very good, very good. Now moving on to the next stage of the examination, that is the mains examination. And in mains examination, please tell us, how did you prepare for the GS? First, let's talk about the GS. Did you do any kind of answer writing practice? If you did, how did it help you? Please enlighten us on that. For GS, I used to solve many mock tests, especially for mains. Between those 3 months, I solved many mock tests. Okay. So I was a part of your short test series also. Yes. So that mains camp. Okay. So I used to write daily something. Okay. Means मैंने कैंप के सवाल डेली लिखे हैं सब। Okay. मैंने पूरा फॉलो किया है कैंप का। Okay. तो वो उससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है, मतलब सबकॉन्शियसली आप हर रोज लिखोगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है। और जो मेंटर्स रहे वाजीराम में, उन्होंने काफी सारा हेल्प किया कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, वो पीरियडिकली बताते हैं कि इसमें ये थोड़ा अच्छे से कर सकते हो, तो आपको वो हिट होता है, हाँ ये थोड़ा ऐसे करते तो बेटर लगता। और उसके बाद और एक स्ट्रेटेजी है कि आप अपना आंसर भी बाद में खुद पढ़ो, जो लिखा है, अपने को भी आइडिया आता है कि और बेटर कैसे हो सकता है। तो ये yes now moving on to the optional subject, I believe you have geography optional, and yes, your sir. score is very good, 285. Yes sir, my score is 285. Yes. So what would you advise to those people who are preparing with the same optional? How did you approach, let us say, if in very brief, how did you approach the study part, and after that how did you approach the answer writing part? सर स्टडी पार्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 का थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग अलग है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। पेपर 1 इज अ मोर लाइकली स्टैटिक, that principles, basic concept, you have to be very much clear about the basic concepts. And PYQ जो question papers है, just go through it every time. Okay. And it's not like कि you are reading first time. For every attempt, I would suggest go through the PYQs each and every time, so that you generally get idea it's what is being expected from the exam. Okay. So मैंने वो किया। Okay. उसके बाद सर स्टैटिक का शॉर्ट्स में नोट्स बनाए मैंने ऑप्शनल के लिए, जो 1 डे में रिवाइज हो सके। Okay. वो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके ज्यादा मल्टीपल इटरेशंस किए रिवीजन के, उससे एक बेसिक कंटेंट भी बन जाता है और वो रिप्रोड्यूस होता है उस टाइम में, उसका थोड़ा हेल्प हुआ। और पेपर 2 के लिए थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए। जो पेपर आता है उसमें करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर्स भी ज्योग्राफी के लिए इस दिन मतलब कुछ साल से इम्पोर्टेंट रहा है। तो मैं
बताना चाहूंगा कि उस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। करंट के अफेयर्स के लिए आपने कुछ स्पेशल कोई मैगजीन वगैरह पढ़ी हो, ज्योग्राफी के लिए स्पेशली? ज्योग्राफी के लिए सर डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन आता है, ओके तो वो मैं पढ़ता था। ओके तो उसमें से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते हैं, नॉट ओनली फॉर ज्योग्राफी, जीएस के लिए भी जो एनवायरनमेंट वगैरह सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट साइंस टेक, तो उसमें से मतलब एक एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स के लिए मैं पढ़ता था। Okay. मैं ऐसे नहीं पढ़ता था कि इसमें से नोट्स निकालो, ओके मुझे कुछ नया पता चलेगा, इसके लिए मैं पढ़ता था। Okay. And now, Harsh, moving on to the interview stage. Yes. And it was your second interview. Yes sir. And I believe you have improved 54 marks Yes from sir. the previous interview. Yes sir. So, what was your strategy in this interview? Did you change anything? Did you prepare in, let us say, in a little different way than the last year's interview? Basic thing I think for interview I changed is that the perspective about the interview. Okay. I don't think it's like a viva that Okay. we used to do in a college. Okay. So it's not about the only question answers. Okay. In the It's- first interview, you approached it like a viva. Little bit that approach was there, sir. Okay. So this time it was genuinely like a conversation, Okay. having the discussion. Okay. So if you don't know, say don't know, and be honest with your answers. Okay. That's what I recommend. Okay. That never say any lie Okay. in interview. Okay. So and it feel free because it's a conversation. They are Okay. going to judge you on basis of personality, not on the basis of your knowledge. Exactly. So if you don't know anything, उसका कुछ दिमाग में ज्यादा ये नहीं करना है कि मुझे एक जवाब नहीं आए, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अच्छे से करो और एक फ्लो मेंटेन रहना चाहिए पूरा। आई थिंक होल 25-30 मिनट्स में एनर्जी का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। Okay. वो एनर्जी का लेवल कंसिस्टेंट रखना है, कैसे भी सवाल आए, आपको आए या नहीं आए, तो एनर्जी लेवल मेंटेन रखना है। दैट्स व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट इन पर्सनालिटी टेस्ट। Very good. And we see in today's world, and not in today's, in previous days also, whenever there is a successful person, so there is not it is not one person's hard work. There are Yes, sir. many forces behind you. Yes. Right? And there are many people, I'm sure, family, friends, and mentors, teachers, everyone. So whom would you like to, apart from you, give the credit for your success? Sir, for me, major credit goes to my family. Okay. My father, mother, my Okay. sister. Okay. They are support pillars Okay. for me. Yes. तो उनके बिना तो ये नहीं was कर impossible. पाता मैं, Yes. इम्पॉसिबल था। Hmm. उसके बाद मेरा ब्रदर है, वो उसने स्टडी में काफी हेल्प की मेरी, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा। और इन सब के अलावा जो टीचर्स रहे, मेंटर्स रहे, मैंने वाजीराम से फाउंडेशन भी किया है, जो कुछ टीचर्स है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है सर, क्योंकि आपको एक ये जर्नी में जो समझाना है, जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से समझ जाना फर्स्ट टाइम में ही वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टीचर्स का रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा मेरे जर्नी में। उसके बाद जो मेंटर्स रहे, मैं मोहित सर से तो 1.5 साल से कनेक्टेड रहा हूँ। हाँ, तो सर से मेरी काफी बात होती रहती थी। श्योर शॉट की जो पूरी टीम है मेंटर्स की, तो उनसे भी मेरे को रिपीटेटिवली इम्प्रूवमेंट के सजेशन आते थे। तो इम्प्रूवमेंट के सजेशन बिना तो हम लोग नहीं इम्प्रूव कर सकते। मेरा 3rd मेंस था, मैंने ईच स्टेज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके मैंने क्लियर किया है एग्जाम, तो वो मेंटर्स का रोल उसमें काफी इम्पोर्टेंट रहा है सर। Okay, and in the end, I would like to, let us say, do a quick fire with you, right? So, first question is, there is one myth that you would want to break about UPSC preparation. सर दैट मिथ क्या है कि यूपीएससी में एवरीथिंग अंडर द सन पूछा जाता है, ये मुझे मिथ लगता है। Okay. इस एग्जाम के लिए देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस एंड यू हैव टू दैट फॉलो सिलेबस एंड द प्रोसेस, सो रिजल्ट आएंगे। तो सिलेबस इज द key to the success, I think, sir. Okay. And the next is one book that you would like to recommend to each UPSC aspirant that they should read. Sir, ये apart from syllabus, I think Sapiens करके एक book है,
युवाल नोआ हरारी के, युवाल नोआ उसके हरारी। सारे बुक अच्छे हैं, तो मैं वो रिकमेंड करना चाहूंगा, Sapiens. सेपियंस करके। Another book is 20 lessons for 20 लेसन 21 उसमें lessons for थोड़ा 21st आपका century. पर्सपेक्टिव बदल जाता है हम्म। देखने का, हम्म, उसमें आप ओपन अप हो जाते हैं, हम्म, हाउ वी इवॉल्व, हम्म, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी, हम्म, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ जाता है। हम्म। तो उनके किताब मुझे अच्छे लगते हैं, तो Okay. मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो पढ़े। Sapiens, Sapiens. they should read. Everyone should read. Yes, sir. Okay, very good. And one hobby or one practice that you did or you still do on regular basis that helped you in somehow, whether it is in relaxing you, whether it is in preparing you mentally, that helped you somehow in preparing in this examination. आई थिंक हॉबी काफी इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो वो आपको एनर्जी का लेवल मेंटेन करना है पूरे साल भर, अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, उसके Exactly. लिए काफी इंपॉर्टेंट प्ले है, हॉबी का रोल इंपॉर्टेंट है। तो मेरा हॉबी था, मैं चेस खेलता हूँ। Okay. मैं स्कूल डे से चेस प्लेयर हूँ, Okay. कॉलेज में भी मैंने स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। Okay. तो मैं अभी भी वो फिजिकली नहीं खेल पाता, लेकिन मोबाइल पे खेलता हूँ Okay. ऑनलाइन। Okay. टाइम मिलेगा तब, Okay. कम टाइम है तो 2 मिनट की मैच खेलेंगे चेस की, ऑनलाइन chess.com पे 10-15 मिनट्स। तो आई यूज टू रेगुलरली प्ले चेस व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम। Okay. सो वो मेरे लिए माइंड रिफ्रेशिंग करता था। Okay. सो मैं बाकी सारे एस्पिरेंट को भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि हॉबी जरूर रखे अपना और वो फॉलो करे, क्योंकि इस जर्नी में आपको फ्रेश रहने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। और Harsh, now almost 45 days are there for this year's prelims examination, and students are filled with anxiety right Yes. now. So what would you tell them, or what did you specifically did in last 1.5 month also, and just the day before the examination, to keep yourself calm? एंजाइटी तो सबके रहती है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एंजाइटी रहेगी, लेकिन उसके साथ दैट यू हैव टू बी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन सर। अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन दैट यू डिड हार्ड वर्क होल ईयर, तो उसके रिजल्ट आएंगे। अपने प्रिपरेशन पे डाउट नहीं करना है इस टाइम अगर प्रिपरेशन पे डाउट करोगे तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगा सर। सो प्रिपरेशन आप सभी ने अच्छे से किया है, अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है दैट मैंने 1 साल अच्छे से पढ़ा है, मुझे आ जाएगा, और सॉल्विंग करना है और रिवाइज करना है। बस न्यू सोर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, जो कुछ आपने किया है 1 साल वही रिवाइज करो और उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करो। तो ये मेरा एडवाइस है कि ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, दैट डेफिनेटली प्रिपरेशन तो सबकी अच्छी ही होती है, उस पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यू विल सेल थ्रू। Okay, very good. So that was all, Harsh. Thank you so much for sharing your insights with us and with the students. And I hope the students, they learned a lot from this podcast, and they will implement some of the suggestions. Definitely, it will be very useful for them. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you. Thank you, sir. Thank you.